Good morning. Assalamu alaikum, students. Good morning and assalamu alaikum, students. Can you hear me? Nobody is replying me. Walaikum salam, beta. Can you hear me all? Okay, okay, okay. Just give me a few seconds to admit all the students. Walaikum salam, Rataba. Okay. So I think we should start our lecture now. So as you all know that we have extended the date of copy submission, which was supposed to be submitted on Friday and Saturday, but because of weather forecast, we have extended the date for the submission of your journal. So today you people are supposed to submit your English literature journals, means journal number 1. Okay, so that is why today you are going to submit your English literature journal to me for checking, and you will take your English language journals back. So that is why today we are going to do English language work. Okay, today our lecture is of English language. Date is lecture number is 23, and date is 10th of August 2020, and today is our English language lecture. What I have included in today's lecture of language, I have included translation today. Okay, but I have not included all the 12 tenses in one translations lecture. I have divided the translation tenses wise. It will be easier for you, uh, first of all, to translate one tense first. Then, once you will be used to of each tense, you will be able to identify the tenses, like what is the Urdu identification of the tenses and how you can translate it. Then we will do the miscellaneous exercise of the translation. Miscellaneous means mixed exercise of the translation. Okay, I know that you are in class 10 and in class 9 you people have already done a lots of exercises of translations, but still I am 100% sure that most of the students are still not able to translate even the very first tense, that is present in definite tense. So that is why I have included translation today. And in today's translation, which tense I have included? I have included, okay, just a minute, let me add. Okay, so in today's tense, I have included only present in definite tense. In today's class, today, as I told you, is the language class. It's lecture number 23 and date is 10th of August 2020. And in today's class, language class, I have included translation of present in definite tense also. I'm 100% sure I'm not talking about all of you. I know most of the students are able to translate present indefinite tense, are able to identify the tense present indefinite tense, but still, I'm sure there are many students over there who are still not able to translate a sentence which is from present indefinite tense. Present indefinite tense is the very first tense, is the very first tense and is the very basic tense. So I have taken this tense for today's lecture. I will not do the translations of all the 12 tenses in one lecture. It will be kind of a confusion for you. Even you have done all these tenses in class 9 as well, but still there is a need
to do all these tenses individually. Okay, I'm talking about translation. So today I have taken very first tense, which is known as present in definite tense. Okay, let's talk something about present indefinite tense. Basically, what present indefinite tense is. If you remember my first language lectures when our online classes were started, in language I have taken start from tenses. And at that time, our classes were of 1 hour and 10 minutes, and those 1 hour and 10 minutes were more than enough to explain all the tenses, 12 tenses, with their Urdu identifications and with their structures. But now I have taken these tenses only for translation. I know that you all know the Urdu identification of these tenses. I know that most of the students are able to translate them as well, but still there are students who are still not able to translate these tenses. So let's read something about present indefinite tense. Basically, what present indefinite tense is. Present indefinite tense, it is used to express an action in present time. Habitual or usual actions or daily event or universal fact. It is used to express an action in present time which is usually done on a regular basis. For example, a student says, I go to school. It is daily activity of a student to go to school. So, such actions are expressed by present simple tense. Another example is, I work in a factory. It tells about a usual action of a person that he works in a factory on regular basis. So here we mean that present indefinite tense is used whenever we are talking about any action which is going to take place on the daily basis regularly, when we are talking about a daily exercise, when we are talking about a habitual or any habit, when we are talking about a universal fact. फॉर एग्जाम्पल अगर एक तालिब इल्म ये कहता है कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो स्कूल जाना तो डेली की बात है, ये एक एक्सरसाइज है, ये एक हैबिट है, एक एक्शन है which is going on the daily basis. So we use present indefinite tense over here. Okay, इसी तरह से अगर कोई ये कहता है कि I work in a factory, obviously working in a factory is a job. So the person is supposed to go to the factory on the daily basis. इस तरीके से ये exercise जो daily हो रही है, habit है, on the daily basis this action is going to take place. We use present indefinite tense. Okay, so it means that when we are talking about any action which is kind of a habit which is taking place on a daily basis, or it's a universal fact. For example, सूरज मशरिक से निकलता और मगरिब में गरूब होता है, इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट। और डेली बेसिस पे रोज़ाना ऐसे ही होता है कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गरूब होता है। सो अगेन इट कम्स अंडर प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। ओके, रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द रूल? वालेकुम सलाम आयशा बेटा। Okay, what is the rule? Rule. First form of verb or base verb is used as main verb in sentence. Okay, we always are supposed to use first form of verb in present indefinite tense as a main verb. Okay, please keep it in your mind. In present indefinite tense, we always are supposed to use present first form of verb. In present indefinite tense, we always are supposed to use present in definite tense. Okay. Saad Khurram, I just want to ask you, beta, why don't you come with your own name? Why you are coming here with the name of Saad Khurram? Beta, kindly join the class with your own name. Nabil, did you get me? Kindly join your class with your own name. Okay, so what I was telling you, when we talk about anything which is going to take place on a daily basis, it's a habit, it's a daily exercise or a universal fact.
Okay, now it's fine there. Good. Okay, and what is the main thing is first form of verb. Okay, we always are supposed to use first form of verb. Now see first of all positive sentences. What is the structure? Structure is subject, main verb, and object. Then subject, first form of verb, it means that first form of verb is going to use as a main verb. Okay, first form of verb is going to use as a main verb or base verb. Okay, plus object, plus object. Note, if the subject in a sentence is he, she, it, singular or proper noun, then s or es is added to the first form of verb और बेस फॉर्म इन द सेंटेंस। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी सिंगुलर पर्सन लाइक ही, शी, इट, ठीक है, these all are the singular person. We always are supposed to use s or es after writing first form of verb. But अब हम अगर बात करें आई और यू की, तो आई भी तो सिंगुलर पर्सन है, जबकि यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। बट विथ आई एंड यू we are not supposed to use s or es. Okay, instead of I and you, we always have to use S or ES after writing first form of verb if the person is singular. If the person is singular like he, she, it, we always have to use S or ES after writing first form of verb. But if I or you is there, with I or you, we will never add S or ES. See the example? I write a letter. Because यहाँ पर I है, so I will not add S or ES after writing first form of verb. He gets up early in the morning. Obviously he is a singular person, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि he, she, it के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद s और es का इस्तेमाल करेंगे। He gets up early in the morning. Okay, now sun rises in east. Obviously sun subject हमारे पास जो है वो singular है, तो उसके साथ after writing first form of verb we will add s or es. इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज होगा, या डू नॉट होगा या डज नॉट होगा। अच्छा, अब ये हमने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है दोनों में कि डज कहाँ लगेगा और डू कहाँ लगेगा। ऑब्वियसली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी सिंगुलर पर्सन लाइक ही, शी, इट, we will use does. If we are talking about plural persons like they, we, you, I, कहने का तो I plural नहीं है, singular है, but it's a rule कि I के साथ we cannot add s or es, और इसी तरह से I के साथ we cannot add does. We always are supposed to use do with I plus not plus first form of verb and object. Okay, for example इसी को ही अगर हम नेगेटिव कर लें, I do not write a letter. I के साथ you can never use does. With I you have always used do. और इसी तरह से I के साथ आप s और es का इजाफा वर्ब के बाद नहीं कर सकते हैं, और ना ही you के बाद आप फर्स्ट फॉर्म के साथ s और es का इजाफा कर सकते हैं। If you are talking about singular person like he, she, it, तो आप does का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद s और es का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से he gets up early in the morning, he does not get up early in the morning. Sun rises in east, sun does not rise in east. अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मैं आप लोगों को लिटरली बता बता के थक गई हूँ। पूरा साल क्लास 9 में मैंने आपको ये चीज़ समझाई, 8th क्लास में समझाई, उसके बावजूद यू पीपल आर मेकिंग दीज काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स। जब आप डस का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ही डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आप लोगों ने इस चीज़ का नोट, जायान कैन यू हियर मी नाउ? ओके, अच्छा,
अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ही डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपने ये बात नोट की कि जब मैंने डज का इस्तेमाल किया है तो गेट के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया। मैं हमेशा जिन बच्चों को मैंने एट्थ में भी पढ़ाया है, जिन बच्चों को मैंने नाइन्थ में भी पढ़ाया है, उनको मैं आसान लफ्ज़ों में ये समझाती हूँ कि जब मैंने डज का इस्तेमाल कर लिया है तो जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद एस और ई एस का इजाफा करना था वो मैं किसको दे चुकी हूँ? वो मैं डस को दे चुकी हूँ। वो वाला एस और एस मैं किसको दे चुकी हूँ? डस को दे चुकी हूँ। इसलिए अब मैं ही डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग लिखूंगी। मैं ये नहीं लिखूंगी कि ही डज नॉट गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही डज नॉट gets up early in the morning is wrong. इन सिंपल वर्ड्स डस वाला एस और ई एस जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद लगना था वो मैंने डस को दे दिया है। अब मैं दोबारा ही डज नॉट गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं कर सकती क्योंकि एस और ई एस किसके पास चला गया? डस के बाद, डस के पास, तो इसलिए अब सिर्फ गेट ही रहेगा। ही डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप लिखेंगे he does not gets up early in the morning, it's absolutely wrong. You are going to get zero. Okay, I hope I'm clear now. Let's move forward. This was all about the structure of present indefinite tense। और उर्दू आइडेंटिफिकेशन तो आप सबको पता ही है। आखिर में अगर ता है, ते है, ती है, दोबारा बता रही हूँ, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस इफ वी हैव ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ता ते ती अगर एंड में आएगा तो इट विल बी नोन एज प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। अच्छा, नाउ वी हैव एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, वो स्कूल जाती है, क्योंकि वो एक है तो मैंने जाहिर है फर्स्ट फॉर्म ऑफ के वर्ब के बाद एस या ई एस का एग्जाम्पल एडिशन करना है। शी गोज टू स्कूल। सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूबता है। ऑब्वियसली सूरज एक है मेरे पास। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अच्छा, बहुत से बच्चे आप लोगों में से ये गलती भी करते हैं कि द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट में लिखा जाता है। कभी भी इट्स फ्रॉम द ईस्ट टोटली रॉन्ग। सूरज मशरिक से निकलना और गरूब होना दोनों के लिए आपने जो preposition इस्तेमाल करनी है that is in in। okay, the sun rises in the east and sets in the west। अच्छा, now we have negative sentences। वो स्कूल नहीं जाती है। शी डज नॉट गो टू स्कूल। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे गोज नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसके बाद वाला जो एस और ई एस था वो मैं किसको दे चुकी हूँ? डज को। शी डज नॉट गो टू स्कूल। अगर आप लिखेंगे शी डज नॉट गोज टू स्कूल तो ये आपका गलत हो जाएगा। यू विल गेट जीरो। The sun does not rise in the east and set in the west। अगर आप देखेंगे the sun does not rises in the east and sets in the west तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये वाला s और es मैं किसको दे चुकी हूँ? मैं does को दे चुकी हूँ। अच्छा, अब इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या वो स्कूल जाती है? क्योंकि वो एक है तो जो मैंने ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना है वो होगा डस। डज शी गो टू स्कूल एंड क्वेश्चन मार्क। क्या सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूबता है? डज द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। क्योंकि सूरज एक है तो जो ऑक्सिलरी वर्ब मैंने यूज करना है वो डज का करना है। और डज को इस्तेमाल करने के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद जो एस और ई एस का इजाफा होता है वो नहीं होगा। वो एस और ई एस में किसको दे चुकी हूँ? वो मैं डज को दे चुकी हूँ। Yes, Harim, it only comes in the form of do as directed। Do as directed का मतलब है कि जो कहा गया है वो करें। तो do as directed में आपको हमेशा एक चीज़ करनी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने दो चीज़ें करनी है। फॉर एग्जाम्पल, present indefinite tense sentence is given to you and you are supposed to change that tense into past indefinite। तो अगर वो स्कूल जाती है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला दिया गया, शी गोज टू स्कूल एंड यू आर सपोज टू चेंज दिस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आप सिंपल उसको पास्ट टेंस में चेंज करोगे, शी वेंट टू स्कूल।
You are not supposed to change its form as well, like negative, interrogative, affirmative, whatever it is. If only one condition is given to you कि चेंज इनटू पास्ट टेंस, तो सिर्फ उसका टेंस चेंज कर दे। हाँ, अगर आपसे ये कहा गया फॉर एग्जांपल शी गोज टू स्कूल, और आपसे ये कहा गया कि चेंज इनटू नेगेटिव, तो सिंपल यू विल राइट लाइक इट शी डजंट गो टू स्कूल। बेटा डू एज डायरेक्टेड का मतलब ही ये है कि जो कहा गया है वो करें। तो डू एज डायरेक्टेड में सिर्फ आपको एक कंडीशन दी जाती है, एक शर्त दी जाती है, एक डायरेक्शन दी जाती है कि वो करें। हरीम, डिड यू गेट मी बेटा? कि डू एज डायरेक्टेड में यू आर ओनली सपोज टू डू वट एवर इज आस्क्ड टू डू। जो कहा गया है वो करें। अगर आपसे कहा गया कि उसकी फॉर्म चेंज करें, देन यू विल ओनली चेंज इट्स फॉर्म। अगर आपसे कहा गया चेंज द टेंस, तो यू विल चेंज द टेंस। आई होप आई एम क्लियर टू यू नाउ। Okay, let's move forward. Okay, now we have the translation of these tenses. Now we have translations of these tenses. First of all, मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ। Obviously, एंड में ता ते भी आ रहा है, और मैं I की बात हो रही है। Do you remember I have told you that after writing I and you are not supposed to add s or es after writing first form of verb. I और you एक ऐसे हैं सब्जेक्ट्स हैं जो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। आई तो नॉर्मली प्लूरल, सॉरी सिंगुलर ही है, जबकि यू कैन भी सिंगुलर और प्लूरल। तो इस आई और यू के साथ हम ना तो डज यूज करेंगे, इनके साथ डू आएगा, और ना ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस और ई एस का इजाफा करेंगे। तो मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, आई लव माई ब्रदर। आप ये नहीं लिखेंगे आई लव्स माई ब्रदर। हाँ, अगर यहाँ पे आए वो अपने भाई से प्यार करता है, तो फिर आप लिखेंगे ही लव्स हिज ब्रदर, क्योंकि ही शी इट के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस और ई एस का इजाफा करेंगे। ठीक है। मैं तैरना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्विम। अब आप ये नहीं लिख सकते आई नोज हाउ टू स्विम। हाँ, अगर यहाँ पे होता वो तैरना जानता है, तो फिर आप लिखते ही नोज हाउ टू swim. Okay, I hope you people are getting me. अच्छा, हम हर रोज अखबार पढ़ते हैं, क्योंकि हम हैं, वी हैं, तो इसके साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद एस और ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। एस और ई एस का इजाफा सिर्फ होता है ही, शी और इट के साथ। ही, शी, इट के साथ आप एस और ई एस का इजाफा करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद, और ही, शी, इट के साथ आप डस का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, यू आर नॉट सपोज टू ऐड एस और ई एस आफ्टर राइटिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ यू विल यूज डू। ओके, सो हम हर रोज अखबार पढ़ते हैं, वी रीड द न्यूज़ पेपर डेली। नसीमा हमेशा सच बोलती है। ओके, नाउ वी हैव नसीमा सिंगुलर पर्सन, सो नसीमा ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। ये भी सही है हरीम, इट्स ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट। ओके, मेहनती तालिब इल्म इनाम पाते हैं। मेहनती तालिब इल्म इनाम पाते हैं। अच्छा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन स्टूडेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। सो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स गेट प्राइजेस। बच्चे चिड़ियाघर की सैर से लुत्फ उठाते हैं। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे हैं, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया है, तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद एस और एस का इजाफा नहीं करेंगे। अगर हमारे पास एक बच्चा होता, बच्चा चिड़ियाघर की सैर से लुत्फ उठाता है, तो चाइल्ड इंजॉयज द विजिट द विजिट टू जू। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, चिल्ड्रन इंजॉय द विजिट टू जू। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये मैं आप लोगों को समझा के थक गई हूँ, लेकिन फिर आप गलती करते हो। ये एक ईडियम है हमारे पास, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ठीक है,
पहले में हेल्प्स आएगा बिकॉज गॉड इज सिंगुलर, गॉड हेल्प्स दोज। अब आप दोस्त की बात करें तो अब यहाँ पे हेल्प्स नहीं आएगा, बहुत से लोगों की बात हो रही है, अपनी मदद आप करते हैं, who help themselves। पहले हेल्प्स आएगा और फिर हेल्प आएगा, आप दोनों जगह हेल्प्स कर देते हो, आपका पूरा गलत हो जाता है। God helps those who help themselves। God helps those who help themselves। Okay, डूबते को तिनके का सहारा, again it's an idiom। A drowning man catches at a straw। वो गुनाह पर नहीं पछताता है। Most of the students are joining me too late, I don't know why। वो गुनाह पर नहीं पछताता है। He doesn't repent on sin। Okay? लकड़ी पानी में नहीं डूबती है। Wood doesn't sink in water। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, बेजान चीजों के लिए हमेशा सिंक का वर्ड यूज होता है, डूबने के लिए। जबकि लिविंग थिंग्स के लिए, जैसे इंसान है, उनके लिए आप सिंक नहीं यूज कर सकते, उनके साथ आप ड्राउनिंग का वर्ड यूज करते हो, DROWN, लाइक दिस। अ ड्राउनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ। ओके, लकड़ी पानी में नहीं डूबती है, लकड़ी एक है, वो डजंट सिंक इन वाटर। ओके, क्या वो अपने किए पर शर्म महसूस करता है? डज ही फील अशेम्ड ऑफ हिज एक्ट? ये तलबा वक्त क्यों ज़ाया करते हैं? वाई डू these students waste their time? बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं? Where do children play hide and seek? शरीफ एक्सक्यूज मी, शरीफ आदमी की इज्जत की जाती है। अच्छा, अब आप देखें एक सेकंड बेटा, मेरा गला थोड़ा खराब हो रहा है। शरीफ आदमी की इज्जत की जाती है। अच्छा, इट्स अ पैसिव सेंटेंस। कैसे पता चला कि शरीफ आदमी की इज्जत की जाती है? क्योंकि पैसिव के सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें एक्शन पर फोकस किया जा रहा होता है, जबकि एक्शन करने वाले पर नहीं। हमारे पास यहाँ पर एक्शन तो है कि इज्जत की जाती है, बट डूअर ऑफ दैट एक्शन इज नॉट हियर। Okay, the person that is doing that action is not present here, we only have a verb here, action here, कि शरीफ आदमी की इज्जत की जाती है। हमें नहीं पता कौन इज्जत करता है, we don't know the person, we don't know the doer of that action। So जब किसी एक्शन पर फोकस किया जा रहा हो और उस एक्शन के डूअर का मालूम ना हो, मेंशन ना किया गया हो, these sentences are known as passive sentences। और उनको ट्रांसलेशन कैसे होगी? अ जेंटलमैन इज रिस्पेक्टेड। जैसे कि आप ऐसे वॉइस चेंज करते हो, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हो, तो कौन से ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हो? इज, एम, आर, वही करते हो ना। तो ऑब्वियसली अ जेंटलमैन इज रिस्पेक्टेड। मुझे जुर्माना नहीं किया जाता है। अगेन इट्स अ पैसिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर एक्शन पे गौर किया जा रहा है, जबकि डूअर नहीं है यहाँ पे। उस एक्शन के वो करने वाला जो डूअर है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, सिर्फ एक्शन पे फोकस किया जा रहा है कि मुझे जुर्माना नहीं किया जाता है। कौन जुर्माना करता है, कौन नहीं करता है, वी डोंट नो एट ऑल। वी जस्ट नो कि एक्शन नहीं किया जाता जुर्माना करने का। सो आई एम नॉट फाइन। आई एम नॉट फाइन। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, आर दीज पैसिव सेंटेंसेस क्लियर टू यू? या क्लास 9 में भी कर चुके हैं? डू यू नो पैसिव सेंटेंसेस जिसमें एक्शन पर फोकस किया जा रहा हो बट डूअर ऑफ दैट एक्शन इज नॉट देयर? These kind of sentences are known as passive sentences। I hope it is clear। So let's move forward। और अब आप लोग मुझे इनको ट्रांसलेट करके दोगे इन सेंटेंसेस को। मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बताऊंगी आप लोगों को, आप लोगों ने मुझे इनको ट्रांसलेट करके देना है। ये टेंसेस कैसे ट्रांसलेट होंगे? ओके, वो हर रोज सैर को जाता है। हु इज गोइंग टू ट्रांसलेट इट? गुड, गुड नबील। एनीबडी एल्स?
अच्छा, नबील, यू कैन टेक दिस सैर एज अ वॉक। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना सुबह की सैर, यानी कि मॉर्निंग वॉक। यस हुरिया, गुड, वेरी गुड हरीम। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, नाउ वी हैव सेंटेंस नंबर 2। हम हर रोज अखबार पढ़ते हैं। वेरी गुड दानियाल। आ वॉक नहीं होगा, ही गोज फॉर वॉक। हाँ चले, आ भी ठीक है। अच्छा, हम हर रोज अखबार पढ़ते हैं। फबीहा, फौजिया, वेरी गुड। हम हर रोज अखबार पढ़ते हैं, वी रीड न्यूज पेपर एवरी डे। वेरी गुड नबील। ओके, असलम ईद पर नए जूते खरीदता है। असलम ईद पर नए जूते खरीदता है। गुड, वेरी गुड। असलम बाइज न्यू शूज ऑन ईद। वेरी गुड। अच्छा, गरीब आदमी मुश्किल से गुजर बसर करता है। गरीब आदमी मुश्किल से गुजर बसर करता है। वेरी गुड फौजिया। लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। वेरी गुड। वेरी गुड। ओके, ये लड़का हमेशा शोर करता है। वेरी गुड निशा। फबीहा बेटा, मेक्स अ नॉइज होगा। यू पीपल आर नॉट राइटिंग मेक्स। दिस बॉय, एक लड़का है हमारे पास, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद एस और ई एस का इजाफा नहीं होगा क्या? यस। और नॉइज में एस ई आएगा हरीम। आई होप इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक। दिस बॉय ऑलवेज मेक्स अ नॉइज। ओके, तुम झूठे बहाने बनाते हो। तुम झूठे बहाने बनाते हो। यू मेक लेम एक्सक्यूजेस। झूठे बहाने, लेम एक्सक्यूजेस। वेरी गुड आमना। स्नेहा, वेरी गुड। ओके, डूबते को तिनके का सहारा, अभी मैंने बताया आपको। यस, अ ड्रॉनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ। वेरी गुड। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। अच्छा, अभी ना गेट का ज्यादा अच्छा वर्ड है उठने के लिए। वेक का मतलब आप इस तरह वेक नहीं उठना है, लेकिन वेक्स को आप ज्यादातर इस सेंस में ले सकते हो कि मतलब किसी को जगाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी मदर से ये कहूँगी काइंडली वेक मी अप एट 5 o'clock, कि मतलब मुझे सुबह इतने बजे जगा दें, तो गेट ज्यादा बेहतर है। ओके, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, मैं झूठ नहीं बोलती। मैं झूठ नहीं बोलती। फौजिया, इट्स मैं झूठ नहीं बोलती। सॉरी, वो ऑब्वियस, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सॉरी। वो झूठ नहीं बोलती, शी डजंट टेल अ लाई। और अगर मैं झूठ नहीं बोलती हरीम, इट शुड बी आई डोंट टेल अ लाई। बेटा अभी बताया मैंने, आई और यू के साथ आप डज इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। आई डोंट टेल अ लाई। क्या वो बालों में कंघी करती है? क्या वो बालों में कंघी करती है? यस, डज शी कॉम होगा।
यस, गुड। ओके, मेरा दोस्त मुझे हमेशा सही मशवरा देता है। मेरा दोस्त मुझे हमेशा सही मशवरा देता है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। माई फ्रेंड ऑलवेज गिव्स मी होगा नबील, फ्रेंड एक है। और एडवाइस आपने कौन सा यूज किया, वर्ब वाला, यहाँ पे नाउन होगा। सी ई, एडवाइस, ADVICE। यस, नाउ इट्स राइट निशा, वेरी गुड। ये कसाब कम तोलता है। ये कसाब कम तोलता है। This butcher gives short measures. This butcher gives short measures. बच्चे चिड़ियाघर की सैर से लुत्फ उठाते हैं। चिड़ियाघर की सैर विजिट टू द जू होगा नबील। बच्चे चिड़ियाघर की से सैर की सैर से लुत्फ उठाते हैं, कोई और बताए। नबील बेटा, इट्स विजिट टू द जू। एंजॉय द विजिट, यस, वेरी गुड। ओके, ये शख्स हर आदमी को धोखा देता है। ये शख्स हर आदमी को धोखा देता है। दिस मैन डिसीव्स, धोखा देना, डिसीव्स, एस का इजाफा बात करेंगे क्योंकि एक आदमी की बात हो रही है। दिस मैन डिसीव्स एवरीवन या एवरीबडी। चीट्स भी ठीक है नबील, लेकिन डिसीव ज्यादा बेहतर है। तुम झूठ नहीं बोलते। यू डोंट टेल अ लाई, वेरी गुड। वो गुनाह पर नहीं पछताता है। यस, he doesn't repent on sin. अच्छा, वेरी गुड क्लास 10, यू ऑल हैव पार्टिसिपेटेड। वही बच्चे जो हर क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, आज भी उन्होंने ही पार्टिसिपेट किया है। मुझे नहीं पता कि बाकी क्लास 10 क्या कर रही है। आई डोंट नो व्हाट द अदर स्टूडेंट्स आर डूइंग, बट वट एवर यू पीपल आर डूइंग, यू पीपल आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन क्लास। दिस इज आई एम 100% श्योर कि आफ्टर लॉगिंग योर क्लास you just go on sleep. Acha, I hope everybody has written the attendance now. Nobody is left, I hope. बेटा अटेंडेंस सबकी हो गई है। Okay, I hope this tense is clear to you now. This was very first tense, present indefinite tense. डिटेल में हमने पढ़ा, सारी ट्रांसलेशन की, स्ट्रक्चर बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कब होता है। आई हैव टोल्ड यू कि whenever we talk about habitual things, about daily exercises, about universal fact, there we always use present indefinite tense. So till my next lecture, beta, take very good care of yourself. Stay home, stay safe. Thank you and Allah Hafiz.